السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم حضرت۔ السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے گا حکم۔ اور اللہ کا کرم ہے۔ پہچان رہے ہیں، ابھی بات ہوئی تھی حضرت بات۔ ارے فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا ارے حضرت شہباز کیا صاحب، فاضل جلیل عالم نبیل۔ نہیں حضرت، ایسا غلط بات ہے، اتنی نہیں کی جاتی ہے۔ ارے تو آپ فاضل تو ہیں امجدیہ سے، اچھا اور اشرفیہ سے بھی فارغ ہیں ماشاءاللہ۔ جی۔ اور کچھ پیغام نوٹ کرائیں آپ کی مرضی کے حساب سے، کچھ نہ کچھ عوام فائدہ حاصل کرے، کچھ عوام کو ایسا رخ ملے کہ لوگ سنیں تو کہیں کہ واقعی یہ آج بات ہوئی ہے کام۔ کیسا رخ مطلب شروع جو وہاں سے مطلب انقلابی تبدیلی لوگوں میں آئے، ایسا کچھ لوگوں تک ہم پیغام بتا رہے ہیں۔ ایسا اختلاف، جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ہاں سب آپس میں مل کر متحد ہو، کیونکہ کوئی کسی بھی خانقاہ کا ماننے والا ہو، کسی بھی، ٹھیک ہے، ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ سب کی اصل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، روحانی مرکز، ٹھیک ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک۔ تو ہم سب کو آپس میں متحد اور متفق ہونا چاہیے غیروں کے مقابلے میں۔ بہت بڑی بات۔ اگر کسی کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی خرابی پیدا ہو، یا کسی نے کوئی غلطی کر دی ممبر پہ، کوئی ایسی بات، تو ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے غلط کیا، ایسا نہیں، ایسا ہوگا، اس کا یہ شرعن حکم ہے۔ آپ باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے خلاف قوم کو بتائیں گے تاکہ وہ لوگ آپ کا بائیکاٹ کریں۔ پہلے اسلام میں حجت ہونا چاہیے۔ ہاں، اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب اپنی اپنی طرف سے، اپنے اپنے لیول سے کچھ بھی کسی سے بات کر کے ادھر ادھر پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس طرح قوم اور زیادہ بدزن ہوگی، سدھرے گی نہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے۔ ابھی ذرا سی بات ہوئی ہے ناگپور میں کہ کچھ بدتمیزی کی ہوگی کالپی والے پیر صاحب کے ساتھ میں، تو اس کو انہوں نے اتنا اٹھا دیا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو بھائی یہ پیروں کی باتیں نہیں ہوتی، پیروں کی لوگوں کی باتیں ہمیں کرنی نہیں چاہیے۔ اصل بات پیروں کو لا کے ہم ہی لوگوں نے عوام کے سامنے کھڑا کیا ہے، وہی گاؤں کا جو امام ہوتا وہی لا کے مرید کرواتا ہے۔ کیا بات ہے، ورنہ یہ پیر اس لائق تھوڑی ہے کہ لوگ ان کے مرید ہوں۔ پیر تو پہلے ہوتے تھے، پیر تو حافظ ملت تھے، مفتی عالم ہند تھے، یہ سب اصل تھے لائق۔ اب یہ کائے کے پیر کی عمر تو ان کی ذرا ذرا سی عمریں ہیں، نہ نفس ان کا مرا ہے، نہ تزکیہ نفس کیا، نہ مراقبہ، نہ مجاہدہ، بس چلے پیر بن۔ بڑے لوگوں کی تو ہے، ہمیں لوگ تو انہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، ممبر پہ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ بلا وجہ جھوٹی تعریفیں کر کر کے، جھوٹی کرامتیں بیان کر کر کے لوگوں کو مرید بنواتے ہیں۔ جو ذمہ دار ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ہمیں ان سے ان کی امداد کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی تعجب کی بات تو ہے کہ اشرفیہ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس میں ایک بھی پیر نہیں ہے ابھی جو انٹرنیشنل پیمانے پہ پیری مرید کر رہا ہو۔ ہاں ماشاءاللہ، اتنا اچھا ادارہ ہے جامعہ شیخ مبارک پور، کم از کم ان لوگوں کو اسی سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ وہاں پہ وہی پیری مرید کرتے ہیں، حضرت عزیز ملت اکیلے کر رہے ہیں بس۔ نہیں، وہ نہیں کرتے پیری مرید، یہاں کوئی سسٹم ہے ہی نہیں۔ بچے نہ مرید ہوں کسی سے، اپنا دورے پہ جاتے ہیں، چندہ وغیرہ جو کرنا ہوتا ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہاں کے بچوں کو جو وہاں کے رہتے ہیں، ہم نے پورا ارے صاحب وہ تو اشرفیہ اگر نہ ہوتا نا تو بریلویت ختم ہو جاتی دنیا سے۔ تو اشرفیہ کا بہت بڑا احسان ہے حضرت۔ تو اسی ادارے کو انہوں نے صلح کلی گردانا۔ کس نے کہا؟ یہ بریلیوں کے جو کٹر طبقے تھے نا، کلیم حنفی صاحب۔ اچھا چلو، اگر انہوں نے غلطی کر دی تو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ چلو نوجوان طبقے ہیں، لڑکے ہیں، غلطی کر گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بڑے آپس میں ایک کالپی کے پیر صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اشرفیہ کو چندہ دینا حرام ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا دھندا بند ہو جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر کچھ نہیں ہوتا تو یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اچھے مدارس کے خلاف، اچھے خانقاہوں کے خلاف، اس طرح کی باتیں کرتے۔ ان لوگوں کی باتوں کو ہم لوگوں کو زیادہ ہوا نہیں دینا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگ اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہی کام آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وہی بات اگر میں نے دوہرا دی صلح کلی کے حساب سے، تو یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے صلح کلی کیوں کہا؟ تو میں کیا حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے سوال جواب کے اس میں کہا تھا بھائی کہ ہم اس معاملے میں صلح کلی ہیں۔ انہوں نے تو مزاحن کہا تھا لوگوں کے اعتبار سے کہ اگر آپس میں مسلمانوں کا ملنا صلح کلی ہے تو ہم صلح کلی ہیں۔ صحابہ بھی میں تھا اسی جلسے میں، تو میں تھا حافظ ملت والے مجھے اس میں دستار بتائی میں قمر الزما اعظمی صاحب آئے تھے۔ ہاں، کوئی غلط بات نہیں تھی اس میں، بس اس میں 11 سوال کیے گئے تھے، اس میں تھا ایک سوال یہ تھا کہ کیا اولیاء سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ منع کر دیا کہ نہیں، اولیاء سے مدد نہیں، اللہ ہی سے مانگ جائیے۔ اولیاء سے مدد مانگنے کا جو انکار کیا اس وجہ سے کہ اولیاء کو ذاتی مدد کا وہ نہ سمجھ لینا نمونہ۔ ہاں بس یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی سے مانگ جائیے، یہی بہتر ہے۔
तो अच्छा हाँ, होता है कि अच्छी वास्ता बात है। वसीला दो, आप नेक अमाल का हाँ, वसीला, आप औलिया अगर किराम की औलिया जात का किराम को वसीला दो, वसीला बना के मांग उनके सकते हैं। नेक अमाल का लेकिन वसीला दो, वो जायज है। हाँ, कुछ कौम जाहिल होती है कि डायरेक्ट उसी को समझ के मांगती है, तो मैंने इस पढ़ा तरह था उसका एक ईमान मजमून, खत्म मुफ्ती हो जाएगा। निजामुद्दीन साहब का एक मजमून था, उसमें लिखा था कि इसमें बहुत बड़ी तमहीस है इस मामले में, इस्तियानत के मामले में औलिया से। तो बस हमें बहस में पढ़ना चाहिए, वसीला देकर अल्लाह कौम से को दुआ अगर मांग लो। कौम को बचाने के लिए कि कौम ऐसी ना समझ है, आलिम जानती पढ़ती लिखी नहीं, ऐसा ना वो डायरेक्ट समझ के मांगने लगे। अरे वो इसलिए तो अगर फिर चाहिए जाने क्या क्या करने लग जाएंगे। तब, इसलिए अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अब उनकी आप तारीफ देख, करनी चाहिए। ऐसे तो फिर वो मदद का सिस्टम अगर हो जाएगा तो तौहीद को ही लोग भूल जाएंगे। तौहीद तो नहीं, बुनियादी वो चीज है ना इस्लाम के यार अंदर, तौहीद। हाँ बिल्कुल बुनियादी चीज है, लेकिन अगर वसीले के ताल्लुक से कुरान में जिक्र है, वो अगर तो बता रहे हैं वसीला कि वो इमामों है को कि कोई नेक गलत नहीं। अमाल का वसीला दो। ये अल्लाह हज़रत ख्वाजा नेक वहीद आपके अमाल का, नेक नेक अमाल के बंदों का, वसीले थे, नेक रसूलुल्लाह अमाल सल्लल्लाहु का, अलैहि वसल्लम नेक के बंदों सत्ते तो फिर मैं इस दुआ को कबूल फरमा। वही भी वसीला दें, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम हम लोगों को इतना करना चाहिए कि अगर किसी से गलती हो गई, बड़ा है, नौजवान है, तो पहले उससे बात करनी चाहिए कि हजरत आपने इस तरह किया, आपने यूं गए, यूं किया, ये बहुत ऐसा अच्छी नहीं, बात ऐसा की होना आपने, चाहिए, बहुत ऊंचे इस दर्जे तरह की बात करना की। चाहिए। हाँ, अगर ये ऐसा बात नहीं कि होती उसे ना तो बदनाम करने की कोशिश करे। अगर दो चार लोग हमारी बात, हम जैसे आपसे बात करके आपकी आइडियो डाल रहे हैं, तो दो चार लोग हमसे अगर खुश भी होंगे तो तकरीबन 50 लोग नाराज भी होंगे कि ये लोग बदगोई बदअमनी फैला रहे हैं कौम में। इस तरह का मामला है। हम समझ रहे हैं कि अगर हम किसी की आइडियो उछाल दे, अगर कोई हमसे दब रहा है या हमारी बातों से ज़ेर हो गया है, तो क्या नाम है, उसके लोग जलील समझेंगे। हालांकि थोड़ा अब बहुत ये इससे देखो सुलह कुल्ली का तो ये भी ऑडियो मेरे बारे में आया कि तूने ऐसा क्यों बोला, तो अरे तो आईना सुलह कुल्लियत जिसने लिखा वो खुद मुबारक अशरफिया से पढ़ के गए थे, अनीस आलम सीवानी, आपको तो मालूम होगा। तो ऐसा ये अब ये उनके बारे में मुझे अशरफिया से नहीं पढ़ के मालूम है। गए अनीस आलम, वो खुद आईना सुलह कुल्लियत लिख के अशरफिया वालों को सुलह कुल्ली बना रहा है। मुमकिन है कोई बेवकूफ़ी कर जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे हिदायत दे। उस समय तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के खुद के बेटे भी ईमान से सरफराज नहीं हुए। इसका कोई ये मतलब नहीं कि कोई अशरफिया से फारिग हो गया तो यहाँ हिदायत अरे दे हम दिया कह जाता रहे है हैं कि जब अब तुम वो। अशरफिया वालों को अगर सुलह कुल्ली बता रहे हो तो फिर जामे अजहर वालों के अंदर तो और भी ज्यादा सुलह कुल्लियत है। अरे अशरफिया में तो फिर भी कम सब अज कुछ कम है। हमें अभी जामिया अज़हर से बहस ही नहीं। जब हमारे इलाके में खुद इस तरह की तूफान बदतमीजी उठी हुई है, लोग मुतफर्रिक हैं, तो अभी हमें अपने यहाँ का माहौल सुधारना चाहिए। अजहर तो दूर की बात है, जब वहाँ की बात होगी तो वहाँ का देखा जाएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ लेकिन जो जब कम तुम अज कम एक जरा जरा सी बात में सुलह कुल्ली बना रहे हो तो नहीं वहाँ पढ़ने क्यों जा रहे हो जामे अजहर में। नहीं, महज कहीं कोई जाने से सुलह कुल्ली नहीं नहीं होता। जैसे जब वो हुसामुल हरमैन, ये तमाम तो लोगों को अशरफिया हक वाले, तो जानेगा। अशरफिया वाले तो हुसामुल हरमैन भी मानते हैं, फाजिल बरेलवी को भी मानते हैं, और वहाँ का तौर माशाल्लाह तरीका भी बेशक अहले मानते हैं। सुन्नत का है। तो फिर जहाँ पर जो सब कुछ कर रहे हैं उन्हें तुम सुलह कुल्ली बता रहे हो जहाँ कुछ भी नहीं होता। ना वो हुसामुल हरमैन को मानते जामे अजहर वाले, और ना वो देवबंद वालों से कोई परहेज अरे करते, तो न अहले इसमें हदीस से, कई न लोग बरेलवी से, न होंगे, अहले कई हदीस। तरह के लोग हैं, बहुत सारे असातिज़ा टीचर होंगे, अलग अलग मकतबी फिक्र के। उससे मतलब नहीं वो लोग माने या ना माने, किसी आपके को हम अशरफिया में जो जबरदस्ती नहीं हकीकुल्लाह मनवा साहब सकते। अजहरी है ना, वो उनसे मैंने बात की थी, कह रहे थे जामे अजहर में सब कुछ नहीं होता है। मुमकिन है ऐसा ना हो, नहीं वो कोई कह बड़ी रहे थे कि बात हमारे नहीं। साथ ये नहीं होता जो यहाँ पर होता है ना, जितना ये सब मामला अथवा नहीं है जामे अजहर में। अरे ठीक, तो वो अलग शहर है, कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई नहीं मान रहा तो मुसलमान ही नहीं, बस उसके अकायद में खराबी ना हो। हाँ और क्या, वो अपनी ये तहकीकात भी रख माशाल्लाह। आप सकता है। अब जैसे आपने कहा कि समझाना चाहिए, पहले बताना चाहिए। अब इस दौर में अगर हम कहते हैं कि इमामुल मुकर्रिरीन अल्लामा ताहिरुल काजी साहब जो है कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो उन्हें खारिज क्यों कर रहे हैं इस्लाम से। अरे तो मान कहाँ रहे हैं। अब जैसे आप उन्हें अल्लामा कह रहे हैं, उन्होंने देखो कहा सुन्नी शिया एक ही हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है। एक ये इस तरह की वो हरकतें करते करीब हैं, करके सहाबा को सुन्नी माज़ल्लाह बनाया, रब्बिल उन्होंने आलमीन करीब गाली करके देते। सुन्नी बनाया साहब शिया हजरात को। तो सुन्नी बना, लेकिन जो शिया सुन्नी नहीं, उनको भी आप सुन्नी एक कहना ये वो गलत उस बात है ना। मायना में कह रहा हूँ जैसे जैदी शिया है, जैदी शिया साहबा किराम को ही मानते हैं। क्या? जामे अजहर मिस्र में जैदी शिया है, जैदी शिया साहबा किराम को मानते हैं। अच्छा, और तो ये बहरहाल तब्दीलियों के इसके बारे में अलावा आला भी हजरत ने, खराबी है। आला अच्छा, हजरत ने भी लिखा है तब्दीलियों को उनके काफिर नहीं अलावा भी कहा खराबी जाएगा। है, वो हमारे यहाँ का नहीं है, तो एक अलग जगह का है, ठीक है, दूर का है। तो उसके अंदर खराबी तो किसी एक उलमा ने नहीं, मतलब हिंदो पाक के कम से कम बहुत सारे आलिम दीन में चलो उस पर खैर वो तो फतवा दिया है। अच्छा, तो चलो आपको उनके लिए तो इख्तिलाफ हमने मान नहीं, ली, एक मिनट उनके एक लिए मिनट मान लिए, आपको चलो मान लिया एक उनके लिए। मिनट हम लोग अब ये जैसे बताओ आप मुफ्ती एक आजम मिनट हिंद का जो खलीफा हो उसमें तो कोई आपको खराबी नहीं होगी ना। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद एक नागपुरी जो थे उन पर एक किस मिनट बात एक पर मिनट कुफ्र का फतवा लगाया। आपको हक हासिल है, आप इख्तिलाफ रखें उनसे, ना रखें हमें उससे मतलब नहीं है। हम अपना मान सकते हैं, हमें भी हक हासिल है इख्तिलाफ का, ठीक है।
या आप इत्तेहाद मत का। मानो, हम नहीं कह रहे कि मानो, अल्लामा ताहिर काजी मत मानो आप। हाँ, हम नहीं मान रहे हैं, अगर उन्होंने गुमराह के हमारे काबिल नहीं कहा तो ठीक है, वो अलग बात जानते है। उनका काम, वो काम करें अपना, लेकिन एक दुनिया उनको मान रही लेकिन है, बड़ा लाखों तबका हजारों मान। काम करे, कोई अगर गलत काम करे जिससे अकायद दुरुस्त ना हो, फिर उल्टी सीधी बातें करे, नहीं, वो अहले इस तरह बैत की शान भी बयान करते हैं, सहाबा किराम की भी शान बयान करते अरे हैं, इस और तरह ये गैर भी करते हैं, इस तरह तो सियासी क्या है, अहले बैत की ताजीम का बयान करते हैं, ये अलग मसला हो गया, उसे छोड़ो। बहरहाल कहने का मतलब अच्छा ये चलो है, अगर उनके किसी लिए मान लिया। अब एक ये मिनट बताओ, सुनो, मुफ्ती आपसे गुलाम एक बात, मोहम्मद बस नागपुरी ने एक मिनट, कौन सा जुर्म किया था जो उन पर कुफ्र का फतवा लगाया? उस वो मसले के बारे में मुझे इल्म ही नहीं, मैं उस अच्छा चलो, शख्सियत उनके को बारे जानता में हूँ, इल्म नहीं है आपको? नहीं ये जानता, नहीं आईना जानता सुलह कौन। कुलियत लिखा था अनीस आलम सीवानी ने, ये किस बात पे इसकी लिखा था बात तो हो कि गई, इससे मतलब नहीं कि मैं तो कहा नहीं कि मुमकिन है कि अशरफिया ने हिदायत दे के भेज दिया, कोई गुमराह नहीं हुआ, मुमकिन है आज जाने के बाद अच्छा कोई चलो, काफिर हो जाए, कोई ये बात कार्तिक नहीं। वाले पीर साहब ने क्यों कहा था अशरिया को चंदा देना हराम है? तो वो उनकी गलती है ना, आप उनसे बात अच्छा करें, चलो, राब्ता ये करें भी कि छोड़ो। उन्होंने क्यों कहा। कलीम अनफी हाँ, साहब ने पूरा एक वो बनाया था टाइटल यूट्यूब में कि तो अशरफिया में काफिर आए, अशरफिया में आपको काफिर आए। कलीम हनफी साहब और यहाँ के लोगों को मिला के एक मीटिंग करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी कि आप इतने बड़े इदारे पे ऐसा क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप लोगों की गलती है ना, बल्कि आप लोग किसी और तरीके से हवा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाना चाहिए ना, अगर कलीम सही हनफी बात है, है। नौजवान आदमी है, गलती कर बैठे हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया, तो आप उनसे बात करें, अशरफिया के उलमा को बुलाएं, कहीं एक जगह मीटिंग रखें, ना खाने पीने का इंतजाम, पानी का इंतजाम हो, वहाँ सब अपनी अपनी बात रखें, जो फैसला उसके बाद उसको आवाम तक मशहूर किया जाए। यूं बदतमीजी बर्पा की जाए यूट्यूब पे, तो इस तरह हमारे कुछ लोग हमसे खुश होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कौम दर्जन होगी। अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व हाँ, युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह की ईमान दीन वालों, की, जो अगर अल्लाह हम के दीन की मदद करेगा, अल्लाह तो फरमाता अल्लाह है मैं उसकी तुम्हारी मदद करूंगा। करेगा, तुम्हारे कदमों, तो अगर हम अल्लाह की दीन की अच्छा मदद आप करेंगे, ये कौम को बताइए, आप दुनिया गुमराही का से सबसे बड़ा बचाएंगे। मुफस्सिर कुरान अभी किसे मानते हैं इस वक्त? इस वक्त जो मौजूद, देखिए मेरी किसी जात के अहले बारे में सुन्नत में ज्यादा अपने कौन हो? नहीं तो मैं अहले बताऊंगा अभी सुन्नत। दुनिया का सबसे बड़ा मुफस्सिर। एक मिनट, इस वक्त मुझे इन चीजों के बारे में जब इल्म होगा और वो शख्सियत चलो मैं खुद ब बता खुद रहा निकल के हूँ आ जाएगी। आपको, ये शायद नहीं इल्म हो, दुनिया का नहीं नहीं, सबसे एक बड़ा मिनट, मुफस्सिर अगर कोई है इस वक्त सुन्नियों में, तो हजरत मौलाना कारी रहीउद्दीन साहब इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद बम्बई है। एक मिनट, हमने 2 पूरी बार वो दुनिया का कुरान की जायजा नहीं तफसीर लिया है। 23 साल में मुकम्मल सुनाई है, सुनिए आप 23 मेरी साल बात, में। उनको आप मेरी गुमराह बात करार सुनिए। क्यों दिया? मुझे नहीं, मैंने उन पूरी जैसे, वो दुनिया तो का खलीफा जायजा मुफ्ती नहीं आजम लिया हिंद है। है और मुफस्सिर कुरान है, जब उनको नहीं बख्शा कि ये उलमाए जिनके कौंसिल में बारे बैठता है में मुझे गुमराह, इसके इल्म ही पीछे नमाज नहीं होगी? जिनके बारे में मुझे इल्म ही नहीं है, आप उनके बारे में बता रहे हैं, हम कैसे आपकी तारीफ करेंगे। अच्छा, वो मोहम्मद छोड़ो, अहमद हम मिर्बाई साहब को तो आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जानते तो हैं। उन्हें सुलह कुली क्यों बताया इन्हें सुलह कुलियत में अनीस आलम सीवानी ने? किसे? अनीस तो आलम उसकी सीवानी साहब गलती, ने। हमने कहा, अगर उसने कहा तो हम कह तो रहे हैं, अशरफिया कोई अच्छा, पढ़ ले, इसका रईसुल मतलब ये कलम, नहीं कि उसे रईसुल हिदायत दी तहरीर गई। और स्कॉलर मुफ्ती जीशान मिसबाही, वो भी तो अशरफिया से पढ़े, उन्हें सुलह कुलियत क्यों बताया? वो ये सैयद भी गुलाम पूछ रहे इलाहाबाद हैं कि में। मुमकिन है उन्होंने ऐसी गलती कर दी हो कि इनका सनद मंसूख कर दिया गया हो, कह तो अच्छा रहे हैं, अगर अच्छा, यहाँ ये कोई पढ़ बताओ ले आप, तो सैयद हिदायत सरावा होगी। इलाहाबाद, मुफ्ती बद्र आलम साहब, निजामुद्दीन साहब एक बार नहीं गए, कई बार गए। अब ये बहाना अगर क्यों अच्छा, तलाश रहे हैं कि साहब मालूम नहीं था? हजारों, एक 10 मरतबा नहीं, हजारों मरतबा अगर वो गए हैं वहां से, तो क्या कोई कहीं जाने से सुलह-कुल्ली हो जाएगा? नहीं तो आप खुद ये बताएं, बाद में क्यों क्या नहीं गए, सुलह-कुल्ली पहले की क्यों गए तारीफ थे? है? फिर ये ऐसा शिकंजा क्या क्यों कसा गया बरेली की तरफ मुमकिन से? है वो इस्लाह के लिए गए हों, इस्लाह के लिए नहीं अरे गए। ऐसे अल्लाह इस्लाह रब्बुल होती है इज्जत ने क्या? इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, वक्त का तो जो इन्हीं की फिरौन था, इस्लाह हो खुदाई का गई कि दावा उनकी करने वाला, इस्लाह करेंगे? उस तक वक्त के 2 3 पैगंबरों को भेजा था, तो खुदाई का वो दावा जो करने वाला फैजान है। साहब है, अजीज हाफिज मिल्लत के नवाज से, वो तो अब्बू मियाँ साहब की खलीफा है, जो आपके हाफिज मिल्लत के वो है, नवाज है। अरे कोई किसी का भी खलीफा मुरीद, उन सब चीजों को छोड़ो, हम कह रहे हैं अवाम में जिस चीजों से बजनी पैदा हो रही है, आप उस पर कंट्रोल नहीं करें। आप खुद कई कितने वीडियो डाले होंगे बताइए यूट्यूब पे, आप डिलीट कर दें, वरना ये चीजें आपके नाम अमाल में गुनाहों का इजाफा बनेंगी। आप जी, अब अवाम मैं में तो बजनी अक्ल फैला खोलने रहे हैं। वाली बात करता हूँ। असल खोलने वाली बात नहीं, ये बजनी फैलाने वाली है। आप नहीं, जामे समझदार हैं, अगर मिस्र में अगर जब आप आदमी जाता है, वहाँ सबके साथ उसको पढ़ता है, छोड़ो, आप खाता गए है, हैं कभी पीता है, जामे बैठता है, उठता है। आप जामे अजहर गए हैं कहीं? अब ये कभी? बताओ, हाफिज कुरान मिल्लत का फरमाता है, इदारा या है, अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन ईमान फतबय्यनु। वाले, तो आप कोई फासिक खबर लाए तो उसकी तहकीक करो। खूब तहकीक कर लिया करो, की आपने तहकीक? बेशुमार मैंने हमारे तहकीक सुन्नी है ना, हमारे नौजवान भी वहाँ पढ़ते हैं, हम साथी कैसे पढ़ के सारे आए लोगों ना को सुलह जामे कुल्ली अजहर में, साथी हमारे ऐसा नहीं हमारे होता है। साथी जो पढ़ते थे एक भोपाल में। चीज, एक साथी के कहने के मुताबिक आप ऐसे सारे लोगों के अरे कुल्ली साहब, हुक्म आपके लगाते हैं। जामे अशरफिया में जो पढ़ा रहे हैं हबीबुल्लाह अजहरी, वो खुद मुझे कह रहे हैं कि हमें ऐसा माहौल ही नहीं है, ना अरे तो वहाँ तो कब्र पे ठीक है, अजान होती है, माहौल ना नहीं है अंगूठा तो चूमते। वो कह रहे थे अंगूठा भी नहीं चूमते वहाँ पर अजान में, अच्छा चलो और न ठीक है, यागोश उससे अलमदद मतलब कहते हैं वो लोग, ना वो फतह व जामुल अरमैन को मानते, ना वो नहीं देवबंद कह रहे बरेली अहले कि हदीस चक्करों में पढ़ते वो लोग।
अरे चलो उन्हें छोड़ो, वो दुनियावी तौर पे तरक्की कर रहे हैं, क्यों कुछ और छोड़ो, तो करना ये चाहते जाते हैं। क्यों जामे अज़हर पढ़ने क्यों जाते हैं बरेली से? अरे दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए लोग जाते होंगे, दुनियावी या जाते किसी हैं कि चीज में तफसीर महारत पढ़ने करने के लिए। जाते हैं, हदीस पढ़ने जाते हैं, दुनियावी तालीम अरे थोड़ी पढ़ने चलो जाते हैं। हदीस ही पढ़ने, हदीस में महारत हासिल करने के। अच्छा, अगर फिर वहां ये गया बंदा नमाजें कहाँ गुमराह हो पढ़ते हैं? गया वहाँ तो नमाजें सौ किसके वालों से पीछे पढ़ेगा। पढ़ते हैं? वो तो पहले ही खड़े होते हैं। ये नमाजें किसके हम तो पीछे वहाँ पढ़ते देखे नहीं किसके पीछे पढ़ते हैं, मुमकिन है लोग अपना तनहा पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं? हैं, अरे इसके बारे साहब, में ये मुझे इल्म मुमकिन नहीं। मुमकिन कब तक सुनो, चलेगा, ये बताओ आप। अरे तो आप कहे तो नहीं, राब्ता करिए, आप जाके जामिया अज़हर अरे चले आप जाइए हबीबुल्लाह वहाँ। अजहरी एक साहब जो मिनट, आपके अशरफियां पढ़ाते हैं, वो खुद कहेंगे कि अरे मतलब पहले खड़े किसी, होते हैं और वो एक किसी मिनट को उन्हें काफिल छोड़ो, नहीं कहते आप जल्दी। जामिया अज़हर टिकट कराइए, जामिया अज़हर जाइए, वहाँ की वीडियोस वायरल कीजिए, देखिए यहाँ यहाँ ऐसा हो रहा है, अरे लोगों आप से खुद तबलीग गूगल से करिए। निकाल लो, सब किसी निकाल भी के देख लो मोबाइल में, नहीं, उनके सब गूगल शक्लें मिल मेरे लिए जाएंगी। वो कोई, सदरुल गूगल मेरे शफिया लिए अलैहि हुज्जत रहमा नहीं के है। जो देख, लड़के गए थे, अब्दुल इतना मुस्तफा साहब अजहरी, इतना में तो आज हजरत ने मेरा कहा गिरा था कि नहीं है कि अगर मैं ये सही गूगल को लिबास हुज्जत में आए बना तो के फिर इस तरह बदतमीजी इस्तेमाल करूंगा। करो, नहीं आप तो इनको सुने, रवाना कर दो, ऐसा कुछ कहा था। अच्छा एक मिनट, आप ये वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे? मतलब ये है कि अवाम का दिमाग खुलना चाहिए। आवाम का इससे फायदा नहीं हो रहा है, बजन हो रही है। देखिए आप, आपके पास कल से कितने फोन गए होंगे मिसबाही हजरात के, आप खुद बताइए। नौजवान बच्चे आपसे बजन हो रहे हैं। नहीं, अब वो अशरफी हम वालों को खुद चाहिए तो कि थोड़ा दिमाग से काम करें, नहीं, दिमाग से काम हो तो कर और रहे थोड़ा हैं तो तलबा नौजवान या बच्चे अशरफिया के समझ। तलबा जो हैं, कुछ तलबा एक बार फिर तहकीक करने सैयद सरावा जाए कि हकीकत क्या, हम जरा जान के आएंगे, फिर इनसे समझ मुतालबा नहीं करेंगे। रहे हो, कोई कहीं जाने से ऐसे थोड़ी हो जाता है जब तक कि नहीं, उसकी जैसे इस आप तरह की पहले अकाइद जाते ना थे, हो। बाद में जाना बंद कर हाँ दिया जाना बदे अलग आलम बात साहब है, ने। अगर वो गुमराह अब है, ये कह रहे हकीकी हैं माने गुमराह तो है, तो जाएगी, वो कोई ये आराम लोग काम तलबा होगा। जो अशरफिया के एक टीम जाए, भले ही वहाँ नमाज मतलब न पढ़े, खाली ये तहकीक करने जाए कि ये है क्या। वहाँ के मुमकिन उस्ताद है। जब अशरफिया से फारिग में पढ़ा रहे हैं, तो है क्या, इनका मसलक क्या है। अच्छा फिर सुनो, हम आकर वो आपसे फिर कुछ, अशरफिया आए अच्छा कि साहब एक आपने मिनट, उनको गुमराह किस बिना पे अच्छा ठहराया हो, तो गुमराह नहीं है। सुनो सुनो, मैं आपसे इल्तिमास कर और रहा अगर हूँ, वो चलो अगर गुमराह है और कितने एक साल पहले से इधर गुमराह है, सुनो तो यार, उसकी भी तहकीक करें, कितने हेलो, साल से ऐसे थे, और फिर इनसे इधर मुतालबा करें कि अब आप तजदीद ईमान करें, निकाह करें। वो तो इधर 20 सुनो साल से मेरी ऐसे ही बात। थे। अगर कोई गलती कर रहा है तो आप चले आइए, उन लोगों से बात कीजिए, फिर बात करके ना मामला सुलझे तो आप वीडियोस वगैरह डालिए, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप लाखों करोड़ों वीडियो बना के शरिया के खिलाफ डाल दें, अल्लाह जिसे इज्जत देता है वो कभी जलीलो ख्वार नहीं हो सकता, हो तो इज्जु मंतशा तो। लेकिन कह रहे हैं अवाम बजन हो रही है, इसका ख्याल है ना, और अब किसी का दर्द अशरफिया नहीं वाले है। क्या हमने अलीगढ़ अल्लाह ने, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं? अशरफिया के लड़के वहाँ पढ़ते हैं, किसके पीछे अरे नमाज तो पढ़ते हैं? एक अलीगढ़ दुनियावी यूनिवर्सिटी में इदारे मैं के गया लिहाज था, से सबकी मान लो सब डॉक्टर, मस्जिदें, इंजीनियर, सब वकील बनने मस्जिदें जाते हैं तो देवबंद वालों के कब्जे वहाँ में है तुम्हें साहब। अकीदे सिखाएंगे यूनिवर्सिटी की लोग। सारी मस्जिदें देवबंद वालों के कब्जे में है। मतलब आप नहीं सुनेंगे, आप चलो मतलब ये है कि अब आप मालूम। नहीं, आप जब चलो हक से, नहीं, हमारी नहीं, ठीक है, हम रख रहे हैं, इतना अरे वक्त रखो नहीं मत, है अगर, आप कब फारिग हुए थे अशरफिया से? नहीं वो मतलब नहीं, अगर हम एक आम आदमी भी तो फारिग अभी नहीं हुए हैं या पढ़ नहीं रहे, उससे तो मतलब नहीं हजरत, है। आप कम से कम मुहद्दिस एक कबीर बंदा, को आप जानते हैं? मुहद्दिस कबीर ने जलसा जब कराया था अशरफिया के खिलाफ, क्यों कराया था? तो आपको जाके राब्ता करना चाहिए, पूछना चाहिए दोनों तो लोगों से। गुलाम बहुत रसूल सारे लोगों बलियावी ने जब बोला को था कि मोहब्बत ये वगैरह में करते अस्तबल हैं, है, अस्तबल क्यों बोला था? तो आप उनसे बात कीजिए लोगों को। आप इस तरह की बातें क्यों फैला रहे हैं लोगों में, ये नहीं कहने तो का मतलब ये है। सब पुरानी बातें देवबंदियों के खिलाफ क्यों फैला रहे हैं? जो दुनिया से चलेगा छोड़ो उनको। देवबंदी जब गलत है तो क्या उन्हें सही तो बताया फिर ये जाएगा? ऐसी ऐसी इनकी फैलाई जाएंगी पुरानी बातें, ऐसे किसकी? जैसे देवबंदियों के अरे ये खिलाफ। अपने लोग हैं, हम अगर कह रहे इनके हैं से कोई देवबंदी गलती के, होगी आप देवबंदी आप के पीछे जाके, नमाज मत ठीक पढ़ो, है, हम नहीं पहले कह रहे बुलाए पढ़ो। करें, मैं आपसे मतलब लेकिन आप नहीं है बिला आपकी वजह किस देवबंद तरह वालों ने करेंगे, ऐसा बाद में लिखा हम वैसा बोल लिखा, रहा वो हूँ।